اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واجب الاحترام سامعین، پینشنر، سرکاری ملازمین، السلام علیکم۔ مبارکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے۔ پینشن اصلاحات، لیو انکیجمنٹ، ایس ایس ایز، اے ای اوز، پے اینڈ سروس پروٹیکشن ٹائم اسکیل، لائیو اٹینڈنٹ، کلاس 4 اپ گریڈیشن۔ حکومت نے ملازمین، سرکاری ملازمین اور پینشنر کے دل جیت لیے۔ لگتا ایسا ہے کہ الیکشن بالکل قریب ہے، اسی لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ حکومت زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دینے پہ تل گئی ہے اور سرکاری ملازمین کو بالخصوص بہت بڑے ریلیف دیے گئے ہیں۔ یہ سب مہربانیاں ہیں رحمان علی باجوہ صاحب کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 فروری کا جو احتجاج تھا اس میں ہمارے مطالبات کیا تھے۔ سکولوں کی نجکاری نامنظور، لیو انکیجمنٹ کے ظالمانہ نوٹیفیکیشن کی واپسی، ایس ایس ایز اور اے ای اوز کی مستقلی، پے اینڈ سروس پروٹیکشن، پنجاب میں ٹائم اسکیل، پینشن اصلاحات نامنظور، لائیو اٹینڈنٹ اور کلاس 4 کی اپ گریڈیشن، یہ ہمارے مطالبات پچھلے 3 ماہ سے بلکہ 1 سال سے چلے آ رہے تھے کہ ہم نے اس کے لیے 20 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد دن 11 بجے دھرنا دینا ہے۔ تو بہت سے ملازمین، پینشنر چاروں صوبوں سے آئے، آزاد کشمیر سے آئے، گلگت بلتستان سے پہنچے اور بالآخر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، انصاف آپ پہ ہے کہ کیا یہ ہمارے مطالبات منظور ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ لیکن خاص کر کے جن مطالبات کے لیے ہم گئے تھے ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور جو مطالبہ ہماری لسٹ میں شامل نہیں تھا، ڈسپیرٹی الاؤنس، وہ منظور کروا لیا گیا، لیکن وہ بھی صرف وفاق کے لیے۔ اس میں صوبوں کو کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی بعد میں کچھ ملنا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، میری بات نوٹ کر لیں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارے مطالبات منظور ہوئے یا کس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ آگے رحمان علی باجوہ صاحب نے جو رات کو باتیں کی ہیں وہ آپ غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک قسم کا خود تسلیم کر چکے ہیں، سنتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت بڑا لولی پاپ تھا جو ہمیں دے دیا گیا، اب یہ رحمان باجوہ صاحب کمیٹی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، فلاں کمیٹی بھی بن جائے گی، فلاں بھی بن جائے گی، نہ بنی تو دوبارہ پھر ہم کال دیں گے، تیار رہنا، تیاری برقرار رکھنی ہے۔ تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب ہم وہاں پہنچ گئے تھے تو کیوں ہم نے پورے مطالبات تسلیم نہیں کروائے اور ہمیں نوٹیفیکیشن جاری کروا کے اٹھنا چاہیے تھا۔ اب ذرا رحمان علی باجوہ صاحب کا خطاب خود ملاحظہ فرمائیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو بھی کامیابیاں ہم نے حاصل کی، 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، وہ آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ 2022 میں بجٹ سے ہٹ کے معاملات ہو تو آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس کے ساتھ ہوا، بجٹ کے حوالے سے ایڈاک ریلیف الاؤنسز کے حوالے سے۔ یہ جو پروٹیسٹ تھا، اس کے حوالے سے جو معاملات ہمارے چلے، 10 فروری کا احتجاج ڈیفینیٹلی وکیلوں اور اس کے حوالے سے تھا، کوئی بھی ریڈ زون میں نہیں آ سکتا تھا، وہ ہماری بہتر ایک حکمت عملی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ریڈ زون اس دن مکمل سیل تھا، مگر 20 تاریخ کو کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ثابت کیا یہ تو ملازمین کا کام تھا کہ ملازم وہاں پہ پہنچتے۔ جو پہلا مطالبہ ہمارا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تھا، ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہیں کہ بھئی آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ نیگوسیشنز کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی، بٹ جب ہم بیٹھے تو ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے
14 लाख में से सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड रह गए हैं फेडरल के, और इसी तरह से सूबों के हैं। बहुत से साथी जो मुखालिफिन हैं, जो अमली तौर पे मौजूद नहीं थे, वो ये बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो सिर्फ वफाक को होगा। तो भाई बड़ा क्लियर है कि जब यही बातें इन्हीं लोगों ने की थी जब 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था, तो सूबों के अंदर भी मिला। जीते रहो बेटा। और फिर उसके बाद जब 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, वो भी सूबों के मुलाजमीन को मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जब बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम हुए, तो वो तमाम सूबों को भी मिले। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि ग्रेड 1 से 22 की एक जैसी तनख्वाहों में इजाफा होता है, मगर ये 2 दफ़ा हमने ग्रेड 1 से 16 को जो है वो जब प्रियोरिटी दिलवाई, तो 1 से 16 को अगर 35% और 17 से 22 को मिला, वफाक में भी हुआ, तो सूबों के अंदर भी वही इजाफा हुआ। पंजाब के अंदर जब इसके अंदर जो है हिच डाली गई, इनिशियल पे किया गया, बट हमने बुनियाद बना के प्रोटेस्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के मुलाजमीन को भी वही रनिंग बेसिक पे दिया गया, और ये लास्ट बजट के अंदर भी यही हुआ। तो साथ ही इस हवाले से तसल्ली रखें कि जो भी मराद वफाक को मिलेंगी, अल्टीमेटली वफाक का बजट अलहदा है, मामलात अलहदा है, बट इसको बेस बुनियाद बना के सूबों के अंदर भी मिलेगा। 30%, 40% हम पहले ले रहे हैं, 30% के ऊपर जो है मजीद बात हुई। ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, बट इसके ऊपर भी हमारी सख्त बहस हुई। सारे मामलात हैं डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर आएगा इंशाल्लाह ताला, आपसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि लास्ट भी जब ये निगोसिएशन हुई है तो डीजी खान राना सनाउल्लाह साहब जा रहे थे, आप सारों को पता भी है, तो हमने कहा कि आप आके ऐलान तो करें मीडिया के सामने, बाकी हमारी जिम्मेदारी हम वो करवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला मंगल वाले दिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि कमिंग वीक में हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जो टीचर्स, रिसर्चर्स, इनको जो 25% का रिबेट था ख़त्म किया गया। एक कमिटमेंट थी, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि यहाँ से मेरे सूबे के टीचर्स आए हुए थे और ये सूबे के अंदर जाते, एक एग्रीमेंट हुआ था वफाक का तो कट गया, अगले महीने से इनकी तनख्वाहें कम होना शुरू हो जाती है, और वही मुनाफिकीन बैठ के करते इस्लामाबाद जाने का क्या फ़ायदा हुआ था, आपकी तो तनख्वाहें कम होना शुरू हो गई हैं। तो जो 25% टैक्स रिबेट टीचर्स रिसर्चर्स को मिल रहा था, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हो जाएगा, वो फौरी तौर के ऊपर हमने करवाया। इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट पेंशन इस्लाहात का इशू था, सबसे मेन जिसकी IMF के साथ कमिटमेंट हुई थी, सारे मामलात हैं, उसके लिए डिसाइड ये हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने लीव इनकैशमेंट का भी आपके सामने बात की कि वो टेकअप करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, नवाज शरीफ साहब के साथ, और इसको जो है हर सूरत में वापस करवाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो है लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर हम अपनी सिफारिशात देंगे, अदर्स वे आउट देखेंगे, अगर ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ग्राउंड हमारे पास हाजिर, हम फिर दोबारा से आएंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बट मौके के ऊपर देखते हुए सारे मामलात थे वो हमने देखे। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, अच्छा ये जो 30% है, ये जहन में रखें कि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसकी रोशनी में बिल्कुल इसी तरह हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में भी ये डिसाइड हुआ कि बजट की सूरत हाल को देखते हुए इसके अंदर जो है इजाफा किया जाएगा, क्योंकि 30% तो हमें इंशाल्लाह ये बजट की जो बात हुई है ये अलहदा से मिलेगा, उसके अलावा जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो अलहदा से इजाफा होगा। इसका जो है हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस क्वेश्चन बचेगा तो उसके अंदर जो है रिवाइज होंगे। जो हायरिंग का हमारा फेडरल का चल रहा था वो एज पर रिकमेंडेशंस जो है जो PWD की उसकी आई है स्केल वाइज, पहली दफ़ा जो है ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर हमने वो रिकमेंडेशंस करवाई और वो उसके ऊपर होगा। फिर इसके बाद अगला मुतालबा था हमारा रूल 17A की जो बात करते हैं, सिंध में फौती कोटा का नाम लिया जाता है, वफाक के अंदर इसको प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे यतीम बच्चे और बेवाएँ हैं उनकी जो है रेगुलर बुनियादों के ऊपर भर्ती। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, इसी गवर्नमेंट ने हमारे तमाम मुलाजमीन को हमने इनसे रेगुलर भी करवाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस हवाले से। फाइनेंस से कहा कि हमारा लेना देना नहीं है। ये इशू जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस
इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से टेकअप किया जाएगा और अगर हमें रिट में जाना पड़ता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करेगी हमें, क्योंकि यह गवर्नमेंट का ही डिसीजन था। गवर्नमेंट इसमें पार्टी जो है किसी और केस में गई हुई थी, तो इंशाल्लाह ताला ये भी मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ये काम हो जाएगा। हर सूरत में इसका वे आउट निकाला जाएगा। इसके बाद हमारे तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एड हॉक, कंटीजेंट, टीएलए मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से जो इशू था उसके हवाले से फाइनेंस से नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की डोमेन है, उसके ऊपर भी वे आउट निकाला जाएगा कमेटी बना के कि क्या इसका जो है तरीका कार जो है वो अडॉप्ट किया जाए। मगर दुख और अफसोस ये है कि हज़ारों के हिसाब से मुलाजिम, मगर अमली तौर के ऊपर बात की जाए तो कोई भी नहीं। मगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्टेड हॉक या टीएलए की बात करूं, ओवरऑल जो पेंशन रिफॉर्म से तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था उसके हवाले से भी बेनिफिशरी 14 लाख वफाक, 10 लाख पंजाब, तमाम सूबों के जो है, और अमली तौर पे 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार साथी। बट जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी सर आंखों पे और बेहतरीन तरीके के साथ, अल्लाह का शुक्र है, हमने वाइंड अप इसको किया है। ये भी एक कमेटी बनेगी। इसके बाद जो हमारा अगला मुतालिबा था स्कूलों, इदारों की जो है निजकारी और इसके हवाले से जो मामलात थे उसके हवाले से भी कमेटियां बनेंगी। हर इदारे के पॉलिटिकल इसकी नुमाइंदगी होगी, इदारे के नुमाइंदे होंगे, और जो यूनियन के साथी हैं वो बैठ के अपनी सिफारिशात और वो देंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स है क्या, कि बाहर से बैठ के तो रिफॉर्म्स जो है की जा रही है, अंदर की बात जो है जब तक मुलाजमीन की यूनियंस नहीं बैठेंगी तब तक जो है ये मामलात नहीं आ सकेंगे उसके आगे। इसके बाद सूबों की तर्ज के ऊपर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का इशू था। तमाम सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हो चुकी। यूडीसीज जो अगले स्केल दिए गए हैं, छोटे मुलाजमीन को 2-2 उसकी मरात नहीं थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ बैठ के बजट तक जो है इंशाल्लाह ताला उसको भी वाइंड अप किया जाएगा। ये भी हो गया। हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज कानों से नहीं सुन सकते मेरे ख्याल, जो बोल भी नहीं सकते, मगर जो आंखों से नहीं देख सकते सारे हैं। सूबों की तमाम सूबों में जो उनका अनाउंस हुआ था वो भी इसके ऊपर जो है हो जाएगा। जी असगर अली बाजवा साहब, सूबों की तर्ज पे अपग्रेडेशन हो जाएगी। पर जितने मुलाजिम थे ना, मुतालबों की लिस्ट इतनी लंबी, वहाँ पे लीडर भी इतने नहीं थे जितने ज्यादा मुतालिबात थे। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से साथी पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल यूटिलिटी स्टोर्स के साथियों ने अपना फैसला खुद किया है 27 तारीख के हवाले से। अल्लाह करे कि उनके मामलात हल हो जाए। कंफर्म है। तमाम साथियों के लिए मैसेज है कि अपग्रेडेशन से बहुत ज़्यादा कि ज़िंदगी में वो कहते हैं कि गम और भी है दुनिया में अपग्रेडेशन या उसके सिवा। तो तमाम साथी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। मैं बड़ा क्लियर इस हवाले से कह चुका हूँ कि मीटिंग करके जो है मैं अपनी जिम्मेदारियाँ किसी और को दूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर साथी यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो उनको यही था कि लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं था। घरों में बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है। गद्दारी, बिकने वाले और फलां 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 फलां, मेरे ख्याल में एक बंदे के ऊपर भी पर्चा हो जाता तो पीछे किसी ने नहीं आना था। ये अल्लाह ताला का खसूसी करम है मेरे ऊपर, मेरी पूरी टीम के ऊपर। मैं इनका जितना भी शुक्रगुजार हूँ। और आप सारे साथी जो अमली तौर के ऊपर, एक एक साथी इधर मौजूद था, जो एक साथी इधर मौजूद था, ये लाखों मुलाजमीन ने जो ये रिलीफ लेंगे, ये आप लोगों के सर का सदका होगा। तो साथी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। जो भी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह ताला, कल तो पेशावर जाना है हमें, एक ज़रूरी मीटिंग है वहाँ पे। ड्राफ्ट के हवाले से आज कॉल आ गई थी, कल शाम को या परसों उसको हम फाइनल करके जो है रिटर्न शेप के अंदर लेके आएंगे, तमाम साथियों को शेयर भी करेंगे और ये पहरा दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का एग्रीमेंट होगा जिस तरह से पीटीआई के दौर के अंदर शेख रशीद, परवेज खटक, अली मोहम्मद खान साहब के साइनों के साथ हुआ था। उसको हमने पाए तक, मील तक भी पहुंचाया। मेरी तो आवाज भी आप मुलाजमिन ले गए। साथी तैयारी रखें, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, सब कुछ करवाना, ये मेरी और मेरे फेडरल सेक्रेटेरिएट के साथियों की जिम्मेदारी है। सूबों से आने की ज़रूरत इंशाअल्लाह ताला नहीं पड़ेगी आप।
तमाम हमारे सूबाई व वफाकी कायदीन जितने साथी इसके अंदर मौजूद थे, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी है और फिर नाराज़गी आ जाती है। तफसील मैंने मेरे ख्याल में शेयर कर दी। एक दफ़ा फिर से ये खा गए, पता नहीं मेरे लिए हिस्सा इन्होंने रखा है या नहीं रखा, और कुछ रखा है नहीं रखा भाई साहब मेरे लिए, कुछ भी दे दो यार। एक दफ़ा फिर से तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने एतमाद किया, साथ दिया, सपोर्ट किया। आपसे वादा है कि ये जो कमिटमेंट्स हैं इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़ा वो हम पूरी करवाएंगे और ये ज़रूर पूरी होंगी। जो पेंशन के हवाले से हैं, जो हम सिफारिशात देंगे, तैयार करेंगे, अगर हो जाती हैं, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है तो ठीक, नहीं तो घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। ये हम चीज़ें ले लें। 1-1.5 महीने में आगे रमज़ान भी आ रहा है डेफिनेटली, और ये चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी तो फिर साथी मिल के जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे साथी इस हवाले से। बट मुझे अल्लाह के घर पूरा यकीन है कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट हो रही है, ये जहन में रखिएगा, ये पेंशन रिफॉर्म्स जो है हमारे फ़ौज के सिपाहियों के ऊपर भी हुआ है और आर्मी इसके ऊपर जो है हमारी वो काम कर रही है। और मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले के अंदर इंटरवीन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेंशन का एक बहुत बड़ा बजट है, बट इस पूरा जो ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आया है तो 80% शेयर हमारे फ़ौज के जवानों का बनता है। पकड़ते हैं सब कुछ। आपने 26 नवंबर को भी यही किया पिंडी इस्लामाबाद वालों ने कि कितने वोटर से या कुछ है, मगर वो एक सियासी इशू था, यहाँ पे आपका ज़ाती इशू था। आपने यहाँ पे भी वही हरकत की, घरों में बैठे रहे। घरों में बैठे रहने से अगर आप समझे कि मामलात हल होंगे तो ये कभी भी नहीं होंगे। और इनवैलिड और जितनी भी कैटेगरीज हैं इसकी डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया बने या कुछ बने, बट मुलाजिम घर में बैठ के अगर मुतालबात रखेंगे तो पूरे नहीं होंगे। तो आप लोगों ने, आप अहबाब ने रहमान बाजवा साहब का खिताब बगौर सुन लिया होगा, तो जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर गौर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या आपका कोई एक मुतालबा भी पूरा हुआ है। अपने गिरबान पे हाथ रख कर मुझे बताना, गिरबान में झांक कर कि हमारे साथ कितना बड़ा लॉलीपॉप हो गया है, हुकूमत ने हमारे साथ हाथ कर दिया है या अंदरूनी खाना क्या हुआ है, ये मैं कुछ